This is angle theta. Okay, now so this value, so whenever we say, when we are closing, this vector is there na, B vector is there, it is having theta angle with the horizontal, then this B vector component along the horizontal direction will become B cos theta. कभी भी याद रखिए, so आप अगर थीटा को क्लोज कर रहे, मतलब whenever you are taking this vector while resolving का मतलब क्या होता है, take this vector to x axis and take this vector to y axis, isn't it? So ये वेक्टर को आप x axis की तरफ लेके आना है और y axis की तरफ लेके जाना है. तो जो वैल्यू आता है y axis के ऊपर, that is the y component of the vector. The value that comes onto the x axis is the x component of the vector. So x के तरफ अब अगर आप आ रहे, so you are coming towards x axis, this b vector is coming towards x axis, and what you are doing while coming from here to here, you are closing the theta close हो जाता है ना. अगर ये दोनों समझिए एक movement है, so this line is moving towards this line, so in this movement this theta is getting closed. थीटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. सो कभी भी आप थीटा को क्लोज कर रहा है तो आपका कंपोनेंट हो जाता है कॉस. ये याद रखिए, मतलब कौन से किसके ऊपर कॉस आता है, किसके ऊपर साइन आता है, ये कब सभी लोगों को डाउट रहता है. एवरीबडी विल get confused on which axis you need to take cos, on which axis you need to take sine. So for that a simple trick is, whenever the theta is getting closed by the movement, then we represent that component as cos. When theta is opening, so यहाँ से यहाँ जा लेके जा रहे हैं आप इसको, तब क्या हो जाता है, so this will become opening of angle. This is opening the angle. That means this is b sin theta. This is what, b sin theta. So close हो जाता है एंगल को cos, ओपन करता है एंगल को देन साइन. सी ये सेम वैल्यू इधर भी लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज दिस टू आर पैरेलल वेक्टर्स. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कीप दिस साइन हियर आल्सो, so b sin theta. So what I am doing now, so I am putting this value here and this value here. Okay, so as this is b, it is resolved in vertical direction and horizontal direction. Vertical direction resolution will be b sin theta, vertical direction resolution will be b sin theta, and horizontal direction resolution will be b cos theta. Okay, एक काम खत्म हो गया. Now here now this is a right angle triangle. Let us take this as P, Q and R. So this is PQR is a right angle triangle. So PQR is a right angle triangle. Now in this hypotenuse is PR. So PR square is equal to PQ square plus QR square. PQ square plus QR square. So what is PR square? That is resultant force or resultant vector is equal to PQ is nothing but PQRS रखो इधर. So PS plus SQ whole square, right? So PQ square is equal to PS plus SQ whole square plus QR square. So what is PS? PS is what? PS is ये बार वेक्टर ये plus SQ क्या होता है? B cos theta whole square plus QR क्या होता है? B sin theta whole square. B sin theta whole square. So that means ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है. सो दिस वन इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन करने से आपको क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta plus 2ab cos theta, 2ab cos theta. So यहाँ पे we know that from the trigonometric identities, so cos square theta plus sin square theta is 1. That means a square plus b square plus 2ab cos theta is nothing but fr square, resultant force or resultant value, resultant vector. So fr is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So इसी को r बोलो या fr बोलो. So resultant r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So whenever two vectors are represented by two sides of a triangle, then the third side will be the closing side will be the resultant,
and the resultant value is equal to square root of square of the vectors magnitude plus 2ab cos theta. This is very very important formula. यही formula आपको parallelogram law से ही prove होता है, triangle law से भी prove होता है. Whatever law you take, you can prove this value either by using a triangle law which we did now. Same thing we can prove also by using parallelogram law of vector. So यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कभी भी देखिए वेक्टर को दो चीज़ चाहिए. वेक्टर को क्या चाहिए? दो चीज़ चाहिए. व्हाट इज़ वन इज़ मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा क्या है? डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में ये है? डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये अल्फ़ा. सी दिस रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आप ये रिजल्टेंट वेक्टर को पकड़ना है, इफ़ यू वांट टू कैच दिस रिजल्टेंट वेक्टर, सो एट व्हाट एंगल आई नीड टू मूव. सो अगर आप यहाँ एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल मूव करेंगे, एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल मूव करेंगे तो आपको एफ आर मिलेगा, एफ आर का डायरेक्शन मिलेगा. तो आप अल्फ़ा डिफाइन करेंगे तो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ the resultant vector. Alpha is nothing but the direction of resultant vector from the same right angle triangle PQR. From the same triangle PQR, tan alpha क्या होता है? Tan alpha you have learned in your intermediate 10th class. That is opposite by adjacent. Opposite by adjacent. Opposite में क्या है? B sin theta. Opposite में क्या है? B sin theta मतलब QR. By adjacent में क्या है? PQ. PQ का मतलब क्या होता है? ये plus B cos theta. A plus B cos theta. This is what? This is PQ. So B sin theta. So क्या हो गया? Tan alpha is equal to B sin theta by A plus B cos theta. B sin theta by A plus B cos theta. This is tan alpha. So tan alpha is equal to B sin theta by A plus B sin theta. सो यहाँ पे आपको अल्फ़ा चाहिए, मतलब अल्फ़ा इधर रखो तो टैन इधर हो जाता है, अपोजिट साइड जा जाता है, वो बन जाता है टैन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी साइन कॉस थीटा. ये जो ए प्लस बी कॉस थीटा है, ए प्लस बी कॉस थीटा. सो ये सिंपल है. सो या नाउ यू गॉट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट डायरेक्शन. So by this way you can find the resultant of any two vectors using these techniques. दूसरा लॉ हो जाता है पैरेललोग्राम लॉ. इसमें भी वही होता है. इसमें क्या होता है? when two sides of a parallelogram is represented by two vectors. So एक वेक्टर हो जाता है q. Let us take one vector q is one side of parallelogram. So another vector p is another side of parallelogram. Then the resultant will be the diagonal of the parallelogram. So ये diagonal होगा, parallelogram का diagonal है, तो a diagonal is representing the resultant of P and Q. This diagonal is representing the resultant of P and Q. So इसको ये भी Q हो जाता है. So अगर ये parallel vector है ना, this is parallel line to this. So if this is Q, then this will be also Q. If this is beta, let us take the angle of resultant is beta. This is beta, and let this is theta. अगर ये theta होगा तो ये भी theta होगा because these two are parallel lines. So ये Q है तो रेजोल्यूशन करो, ये होता है Q. अगर इधर देखो Q क्लोज हो जाता है, थीटा क्लोज हो जाता है, सो Q cos थीटा. ये होता है Q cos थीटा, ये होता है Q sin थीटा. सो वही कहानी फिर. सो टेक दिस, ये लेट इज दिस इज B C D E. सो देखिए A B C इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. A B C इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा. तो ये भी अगेन क्या हो जाता है? AE प्लस EB होगा होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो आप करेंगे तो सेम ट्रायंगल लॉ में जो हमने किया वो सभी चीज़ यहाँ पे आ जाता है. सो सेम एग्जैक्टली द सेम वैल्यू यू विल गेट इवन दो यू यूज़ ए पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम के ऊपर भी आप रखो ये वेक्टर्स को या ट्रायंगल पे रखो. सो दोनों में आपको सेम वैल्यूज़ आता है. ठीक है, सेम वैल्यूज़ आता है. सिमिलरली इफ़ यू वांट टू सब्सट्रैक्ट नाउ, यहाँ पे जो आप कर रहे हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट इज़ नथिंग बट व्हाट? सो P वेक्टर और Q वेक्टर का एडिशन है. आप अगर आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है, P माइनस Q करना है, सब्सट्रैक्शन करना है. तो क्या करेंगे आप? सिंपली द वेक्टर का डायरेक्शन को चेंज करो. पहले क्या करते थे? सो ये P का वेक्टर का डायरेक्शन है, ये Q वेक्टर का डायरेक्शन है. ये दोनों को रिजल्ट अगर आप फाइंड करेंगे तो दिस विल बी P प्लस Q.
क्या होता है P प्लस क्यू। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ लिखता हूँ, मतलब ये क्या हो जाता है माइनस क्यू। सो दिस इज़ प्लस क्यू, देन दिस विल बी द माइनस क्यू, एंड ये दोनों पैरेललोग्राम का साइड्स हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट जो है, दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। सो यहाँ पे सिंपली आप पैरेललोग्राम लें, पैरेललोग्राम में एक वेक्टर को आप अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाता है P minus Q. So like that we can find either addition of vector or subtraction of vector using the triangle law or the parallelogram law. Okay, अगर आप P minus Q किया तो क्या होता है, P plus Q में रिजल्टेंट का क्या वैल्यू आता है, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट P स्क्वायर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वेक्टर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, बस इतना ही फ़र्क है। अल्फ़ा में भी सेम फ़र्क आएगा, सो अल्फ़ा में भी सेम फ़र्क आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज़, अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई किया, ये इज़ मल्टीप्लाइड बाय बी, सो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन से तीसरा जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर भी होता है या स्केलर भी होता है। ओके, सो आपने व्हाट यू हैव डिड इज़ यू हैव मल्टीप्लाइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन you got another vector C. So this C vector may be a vector or may be a scalar. So depending on that the product of vector is classified. अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको तीसरा वेक्टर जो निकला वो स्केलर बना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट, डॉट प्रोडक्ट. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी. वी रिप्रेजेंट दिस एज ए डॉट बी. मतलब you have taken two vectors and you have multiplied them, you got a third vector. The third vector, let it be C, that you got a third value, that is C. That's it. The C, the product C is now a scalar, it is not having any direction. In that case the product of two vectors resulting a scalar is, that product is called dot product. If in case ये दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद after multiplying these two vectors if you get another vector, then that vector product is nothing but cross product. That is called what, cross product. That is called what, cross product. Okay, so cross product ये क्रॉस बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या करेंगे, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो पहले ए डॉट बी, हाउ ए डॉट बी वी डू, लेट अस सी ए डॉट बी में. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी वन एग्जाम्पल होता है, इसके लिए एग्जाम्पल है वर्क डन. सो वर्क डन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. इफ़ यू लुक एट वर्क डन, सो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम. दिस इज इक्वल टू force into displacement. So this is one vector force, this is another vector displacement, and a work done, whatever the, after doing multiplying f and s you get a work done. So work done is a scalar, work done is a scalar, work done does not have any direction. So now these are two vectors, the product of two vectors resulting into a scalar, that kind of product is called what, scalar product. That kind of product is called what, scalar product. See, स्केलर प्रोडक्ट में आप देखिए, पहले वर्क डन आप जब भी करेंगे, सो वर्क डन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो वर्क डन, व्हेन एवर यू सी वर्क डन, सी व्हेन योर फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यू हैव स्टडीड दिस वर्क डन इन योर अर्लियर क्लासेस. सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन and the displacement is also happening in the same direction, then the work done is said to be F into S. Okay, F dot S. Otherwise अगर आपका फोर्स से इंक्लाइंड है, so it is making some angle theta and your displacement is in this direction. आप एक ट्रॉली सूटकेस को खींच रहा है,
ट्रॉली सूटकेस में आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल बी इंक्लाइंड बट द मोमेंट ऑफ द ट्रॉली सूटकेस विल बी हॉरिजॉन्टल। सो इस केस में वर्क डन को अगर हम फाइंड करना है तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूवमेंट है उस डायरेक्शन का फोर्स कंपोनेंट क्या है। यू हैव टू टेक द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब इस डायरेक्शन में जो F का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को आपको लेना पड़ेगा। सो वेन एवर यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ केस यू नीड टू टेक द फोर्स कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस। सो वेन एवर you are finding work done for this displacement you need to take the force component in this direction only. So what is the displacement, what is the force component in this direction? This will be F cos theta as I said earlier. इसको क्लोज कर रहे हैं हम तो F cos theta बनेगा, तो F cos theta into S। सो ये हो जाता है Fs cos theta, Fs cos theta। आपने ये केस भी पढ़े होंगे आपका अर्लियर चाइल्डहुड क्लासेस में। सो ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कूली अगर एक लगेज को पकड़ के पैदल जाता है तो लगेज का वेट आता है नीचे, लगेज का वेट आता है नीचे, आता है वेट mg। सो यहाँ पे ये जा रहा है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इसको लगेज को लेके, तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो देन वी सेड दैट द कूली इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क as the both are making a 90-degree angle. The both are making 90-degree angle. So weight of the luggage is downward and he is moving, taking the luggage and moving in horizontal direction, making the force of the luggage and the moment of propagation is at 90 degree. Then we said that the water is not doing any work. So this is also you have learned. That means what, ये तीनों केसेस के देख के आपको क्या लग रहा है। सो यहाँ पे थीटा के ऊपर वर्क डन डिपेंड हो रहा है, ठीक है, थीटा के ऊपर वर्क डन डिपेंड हो रहा है। सो मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन थीटा एंड द थीटा कंपोनेंट, विच कंपोनेंट इट इज कमिंग हियर, कॉस कंपोनेंट ऑफ थीटा, cos component of theta. So that is the reason why the dot product, for example, for any two vectors, for any two vectors AB, A and B, so dot product, so A dot B is defined as AB cos theta. So दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो और cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, तब आपको आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सिमिलरली अगर वेक्टर नोटेशन में है, सो अगर ये एक वेक्टर है A1i प्लस बी A2j A3k, this is the vector A. Similarly vector B is B1i B2j एंड B3k। सो अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, एक और फार्मूला है, सो और एक फार्मूला भी है ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, सिंपली मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आई डॉट आई हो जाता है तो 1 है, आई डॉट आई बिकॉज थीटा इज 0 डिग्रीज, आई इज एक्स एक्सिस, हियर ऑल्सो आई इज एक्स एक्सिस। ये दोनों आई डॉट आई क्या हो जाता है, आई आई कॉस थीटा इज कॉस 0। सो आई आई का डॉट प्रोडक्ट होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे A1 B1 प्रोडक्ट करेंगे हम, सो A1 B1 सी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये B इंटू कॉस थीटा, राइट, ये B कॉस थीटा। ये में ये वेक्टर में I कॉम्पोनेंट होता है, J कॉम्पोनेंट होता है, K कॉम्पोनेंट होता है। सो इन द वेक्टर ये देयर विल बी I कॉम्पोनेंट, J कॉम्पोनेंट, K कॉम्पोनेंट। So you need to multiply the I component with the corresponding I component of another vector, the J component with the corresponding vector of J component of another vector, K vector with K vector of other K component of other vector. So likewise if you do, so the I component of A vector is A1, I component of B vector is B1, so A1 B1 cos theta, so I के बीच में theta क्या होता है, 0, so cos 0 is 1. So similarly it is A2 B2 and यहाँ पे A3 B3. So likewise you can find the dot product either using the vector notation or by using simply the magnitude of the vectors and angle associated between the two vectors. ये जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है दिस इज़ कम्यूटेटिव इन नेचर है, ये कम्यूटेटिव है प्रॉपर्टीज़ में। सो दिस इज़ कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है दिस इज़ अ मिरर इमेज। सो ये डॉट बी होता है इज इक्वल टू बी डॉट ये। अगर आप ये
मल्टीप्लाई करो बी से या बी मल्टीप्लाई करो ए से, आपको सेम आएगा। इसमें क्या होता है B1 पहले A1 पीछे आता है अगर B डॉट ये आप किया तो। सो वॉट एवर A1 B1 और B1 A1 बोथ आर वन एंड सेम, सो A डॉट B विल बी इक्वल टू B डॉट ए, दैट इज सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फुलफिल करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A डॉट ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। यहाँ A को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं B को और C को। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के भी ये सेटिस्फाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ओके, सो likewise the dot product is defined. In the next session we are going to discuss the vector product or cross product, which is very very important. We use them in various locations for calculating. So we'll discuss detailedly the vector cross product in the next session. Thank you so much.